हेलो अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दिस सेशन ऑफ फिलोसफी। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज द थ्योरी ऑफ नॉलेज, यानी इल्म के बारे में फ़लसफ़े में क्या नज़रियात मौजूद हैं, यानी इल्म की नौइयत क्या है, इल्म हासिल किन ज़राए से होता है और इस हवाले से मुख्तलिफ अदवार में फ़िलोसफ़र क्या कहते हैं। अगरचे इल्म के हवाले से आप रवायती तौर पर सोक्रेटिक इंक्वायरी का सुनते रहते हैं, यानी सवाल पूछना जो है वो इल्म की जान है। लेकिन बाकायदा तौर पर जब आप फ़लसफ़े में देखते हैं तो पहला तो ये है कि इल्म की थ्योरी या इल्म के नज़रिए को एपिस्टेमोलॉजी कहा जाता है और इस एपिस्टेमोलॉजी में आपको 4 बड़े स्कूल ऑफ थॉट नज़र आते हैं, जिन्हें हम रैशनलिस्ट यानी अकल परस्त कहते हैं, एम्पिरिसिस्ट ऐसे फिलोसफर, ऐसे माहिर जो तजर्बे पर अकल से ज़्यादा जोर देते हैं और उसमें हवास के ज़रिए हासिल होने वाले इल्म की अहमियत पर जोर देते हैं। फाउंडेशनलिस्ट जो सबसे ज़्यादा अहमियत बुनियाद या फाउंडेशन को देते हैं, और प्रैग्मेटिस्ट जो कि नजरी इल्म की बजाय अमली या प्रैक्टिकल इल्म के हवाले से बात करते हैं। तो theory of knowledge is a central theme in philosophy, in the sense all philosophy leads back to the question, यानी इल्म के नजरिए को अगर हम बयान करें तो इसका मरकजी नुक्ता ये है कि चाहे इल्म की कोई भी सेंस, कोई भी मफहूम मुराद हो, फलसफे में वो एक ही सवाल की तरफ जाता है, हम क्या जान सकते हैं। इसलिए व्हाट कैन वी नो इज द सेंट्रल क्वेश्चन ऑफ थ्योरी ऑफ नॉलेज। और एपिस्टेमोलॉजी में ये सवाल इस तरह से कहा जाता है कि वेयर डज आवर नॉलेज कम फ्रॉम। और पहले क्वेश्चन में ये है कि क्या हम जान सकते हैं, मतलब कि इल्म की नौइयत क्या है। दूसरा सवाल ये है कि इल्म किन ज़राए से हासिल होता है। पहला बड़ा मकतबा फ़िक्र, स्कूल ऑफ थॉट रैशनलिज्म है, और रैशनलिस्ट फिलोसफर में डिकार्ट, उसके बाद लेबनिट्ज का एक बहुत बड़ा नाम है। वो असल में इल्म और दुनिया के बाहमी ताल्लुक पर बात करते हैं, सॉरी, जहन, हमारे जहन और इस दुनिया के बाहमी ताल्लुक पर बात करते हैं। जब भी डेकार्ट का जिक्र आता है तो वो फ्रेंच फ्रेज जो कि कोगिटो एर्गो सम फ्रेंच लैंग्वेज में है, और आप इंग्लिश में कहते हैं कि आई थिंक देयरफॉर आई एम, और उर्दू में आप कहें कि मेरा वजूद जो है वो सोचने से ही।
تو ریشنلزم کو 17ویں اور 18ویں صدی کے یورپی فلسفیوں جیسے ڈیکارٹ، لیبنٹس اور سپینوزا سے وابستہ کیا جاتا ہے، اور اگرچہ ان فلاسفرز کے اپنے اپنی تشریحات میں فرق ہے، لیکن مجموعی طور پر یہ ذہن کے ذریعے، انسانی دماغ کے ذریعے حاصل ہونے والے علم کو اصل اہمیت دیتے ہیں۔ تو ان کے تصور علم میں لاجک یا منطق کو بنیادی حیثیت حاصل۔ Rationalists believe that the way to attain knowledge is to rely on the resources of logic and the intellect. یعنی یہ لاجک اور انٹلیکٹ جو ہے، یہ ان کے نظریے میں بہت اہم ہے، اور ان کے جو دلائل ہیں وہ اسی نقطے سے جنم لیتے ہیں کہ انسان کے علم کا مرکز اور محور انسانی تجربہ نہیں، یا تجربے کی بنیادی ضرورت۔ اصل ضرورت جو ہے وہ ذہن سے ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو تھیوریٹیکل نالج ہے خاص طور پر، وہ بڑی حد تک انسان کی اسی کاوش یعنی کہ لاجک اور انٹلیکٹ کا نتیجہ رہا ہے۔ یہ فلاسفر جس ریزننگ کی، جس عقلی بحث، عقلی صورت پر زور دیتے ہیں، اس کو آپ پریوری سے جانا جاتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ پرائر ٹو، یا پہلے۔ جب اس کو آپ پریوری کو پرائر ایڈ کیا جاتا ہے تو یہ آپ پرائری ٹو ایکسپیرینس ہے یہاں پر، جو کہ امپیریسسٹ کا نظریہ ہے کہ وہ ایکسپیرینس پر زور دیتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ انٹلیکٹ از پرائر ٹو ایکسپیرینس، ریزننگ از پرائر ٹو ایکسپیرینس، لاجک از پرائر ٹو ایکسپیرینس۔ تو عقل اور منطق کو چونکہ تجربے سے زیادہ حیثیت حاصل ہے، تو ریشنلسٹ جو ہیں ان کے نظریے میں لاجک از پریوری جدید دور کے انسان کے لیے، جس کے علم کا مرکز اور محور جو ہے وہ سائنس کا علم ہے، اور سائنس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آبزرویشن کو یعنی مشاہدے کو، اس کے بعد انفرنس تھرو ایکسپیریمنٹیشن کو، جو کہ ہائپوتھیسس سے شروع ہوتا ہے، مفروضے سے شروع ہوتا ہے، تجربے کے ذریعے وہ انفرنس تک آتا ہے، اور اس کے بعد جو کنکلوژنس ہیں ان کو ایک تھیوری کی صورت میں پیش کیا جاتا ہے۔ تو چونکہ اس میں ایکسپیریمنٹس جو ہیں وہ بنیادی طور پر ہیومن ایکسپیرینس کی ہی ایک شکل ہیں، تو یہ جو علم کا طریقہ ہے، چونکہ ریشنلسٹ طریقہ بنیادی طور پر میتھمیٹکس میں، اس کو آپ پیور میتھ میں اسپیشلی جب آپ بات کرتے ہیں تو اس طریقے سے کام لیا جاتا ہے، تو یہ خیال آتا ہے کہ شاید یہ اسرار کے
रीजन इज प्रायर टू एक्सपीरियंस कुछ ज्यादा वैलिड बात ना हो। लेकिन इसमें कुछ वजाहत इस तरह से दी गई है कि रैशनलिस्ट डज नॉट से दैट वन कुड रीजन विदाउट हैविंग हैड एन एक्सपीरियंस व्हाटसोएवर। We need to be taught language and educated properly if we are to have any chance of success in philosophy. The point is not that philosophers need have no experience at all of the outside world. यानी रैशनलिस्ट ये नहीं कहते कि इंसान जो है वो तजर्बे की नफी करे। हाँ, जब तजर्बे और अकल में से किसी की तरजीह हो तो तरजीहन या बुनियादी हैसियत वो अकल को ही देंगे। और उनका ख्याल ये है कि जब इंसान के पास गुड रीजनिंग स्किल्स यानी लॉजिकल और इलॉजिकल में फर्क करने की सलाहियत होती है, उसके पास जबान की महारत होती है और चीज़ों को समझने की सलाहियत होती है, जैसा कि वो मैथ और ज्योमेट्री में करता है, तो किसी एक्सपीरियंस के बगैर भी वो रीजन का अकल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मैथ में ज्योमेट्री में होता है। और अगर इसको एक्सपीरियंस के साथ करें तो तब भी ये ठीक है, लेकिन चूंकि उन्होंने एक कंडीशन लगा रखी है कि इल्म का आगाज कह लें कि वो जहन की कावज से है, लिहाजा इंसान के पास जो है गुड रीजनिंग स्किल, प्रॉपर लैंग्वेज जो है वो मौजूद होनी चाहिए। Second, rationalist does not say that one can discover particular facts about the world without going into it. उनका ये कहना नहीं है कि कोई शख्स जो है दुनिया से बिल्कुल कतई ताल्लुक कर रहे और किसी कोने में बैठकर सिर्फ अपनी मेंटल फैकल्टी से जो है वो नॉलेज हासिल करे, ऐसा उनका कहना नहीं है। लेकिन वही जो पॉइंट पहले मैंने कहा कि पहले क्या करना है और बाद में क्या करना है, इसके ऊपर उनका यही है कि पहले इंसान को रीजनिंग सीखना चाहिए। डिकार्ट, लेबनिट्ज, स्पाइनोजा, ये तीनों बड़े रैशनलिस्ट फिलोसफर समझे जाते हैं। अगरचे फिलोसफी में एक डोमेन होती है जिसको हम इंट्यूशन की तरफ कह सकते हैं कि जाने वाले फिलोसफर हैं, तो उनमें भी स्पिनोजा जो है वो फिर आगे सबसे रहता है। लेकिन चूंकि इनका आगाज जो है वो तीनों का यही है, खास तौर पे जो रैशनलिस्ट फिलोसफी है उसका सबसे बड़ा फिलोसफर ये फ्रेंच फिलोसफर डिकार्ट ही है। इसके मुकाबले में इंग्लिश फिलोसफर लॉक और कह सकते हैं इंग्लिश या स्कॉटिश डेविड ह्यूम और बर्कले, ये आयरिश है, तो तीनों जो हैं वो एक तरह से बरतानिया से ही ताल्लुक रखते हैं। दे रिजेक्टेड द आइडिया दैट रीजन अलोन हैड पावर टू अंडरस्टैंड रियलिटी। दे गेव द मेन रोल इन नॉलेज टू एक्सपीरियंस। तो तीन, जिस तरह से इस बुक में तीन बड़े रैशनलिस्ट बताए गए, याद रखें तीन नहीं है, रैशनलिस्ट बेशुमार है। इसी तरह एम्पिरिसिस्ट फिलोसफर भी बहुत ज्यादा है, और ख़ास तौर पर एम्पिरिसिस्ट फिलोसफर के साथ आप उनको देखते हैं कि जो इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं कि 16वीं सदी से ही आपको ऐसी आवाज़ें नज़र आती हैं जो एम्पिरिसिज्म की हमायत में लिटरेचर में, फिर 17वीं सदी में, 18वीं सदी में आगे ये बात चलती रही। तो एम्पिरिसिज्म ज़्यादा जो है दफ़ा अदब में आने वाला तस्वर है। उसकी वजह शायद ये भी है
ادب بنیادی طور پر انسانی زندگی کی مختلف صورتوں سے بحث کرتا ہے، انسانی تجربات اس میں سامنے آتے ہیں، تو بجائے کہ ایک مینٹل ایکٹیویٹی کو وہ فوکس کرے جیسا کہ ریشنلسٹ کرتے ہیں، یہ انسانی تجربے کی عقلی صورت یعنی امپیریسزم کو زیادہ قبول کرتے. جان لاک یورپ میں کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح ڈیکارٹ کو ویسٹرن فلسفی کا ماڈرن ویسٹرن فلسفی کا اوریجن سمجھا جاتا ہے، تو لاک کو جو پولیٹیکل آئیڈیلز ہیں جو بعد میں انلائٹنمنٹ کے آئیڈیلز بنے 18ویں صدی میں، ان کا آغاز جو ہے وہ لاک کی فلسفی میں دیکھا جاتا ہے. یعنی اگر بات جو ہے سوسائٹی کی ہے، ایجوکیشن کی ہے، اس کے بعد ڈیموکریسی کی ہے، نان اتھارٹیٹیو سٹرکچرز کی ہے، تو وہ ساری باتیں آپ کو لاک کی فلسفی میں نظر آتی. تو جان لاک اس حوالے سے ایک بہت ہی اہم فلاسفر ہے. جان لاک کی کو ایجوکیشن یا تعلیم میں بھی بہت زیادہ ڈسکس کیا جاتا ہے، خاص طور پر اس کا جو کنسیپٹ ہے جسے کلین سلیٹ یا ٹیبل رسا کہا جاتا ہے. بنیادی طور پر اس کا ٹکراؤ جو ہے وہ اس تصور سے تھا کہ مائنڈ contained certain ideas and concepts from birth. چونکہ جو ریشنلسٹ ہیں وہ بنیادی طور پر اس خیال کے ساتھ ہی آگے بڑھتے ہیں کہ انسان کے پاس ایک ذہن ہے. تو جب یہ سوال آتا ہے کہ ذہن میں خیالات کہاں سے آتے ہیں، تو اگر یہ مانا جاتا ہے کہ ذہن میں جو خیالات ہیں وہ تجربے سے آتے ہیں، یعنی پیدائش کے بعد انسان جو تجربہ کرتا ہے تو پھر ریشنلسٹ جو ہیں وہ ان کا دعویٰ کمزور پڑ جاتا اور وہ ایکسپیرینس کو بنیادی حیثیت دیتے، کیونکہ وہ ایکسپیرینس کو بنیادی حیثیت نہیں دیتے، وہ ریزن کو بنیادی حیثیت دیتے، لاجک اور انٹلیکٹ کو بنیادی حیثیت دیتے. اس لیے انہوں نے کہا کہ پیدائش کے ساتھ ہی انسان کے اندر کچھ صلاحیتیں موجود ہیں. زبان کے حوالے سے یہی بات 20ویں صدی میں نوم چومسکی نے کہی ہے جب وہ یہ کہتا ہے کہ انسان کے پاس ایک انیٹ لینگویج ہوتی، لیکن اس انیٹ یا پیدائشی طور پر ملنے والی صلاحیت کو جان لاک نے مکمل طور پر رد کر دیا تھا. اس کا یہ خیال ہے کہ انسان کوئی آئیڈیا کوئی تصور لے کر دنیا میں نہیں آتا، بلکہ انسان کا ذہن ایک صاف سلیٹ کلین سلیٹ کی طرح ہے، اور اس پر جو بھی لکھا جاتا ہے وہ انسانی تجربے سے لکھا جاتا ہے. Mind is a clean slate and is furnished by experience through our 5 senses. تو ایکسپیرینس ہم گین کر رہے ہیں 5 سینسز سے: ہیئرنگ، سائٹ، اسمیل، ٹچ اینڈ فیل. There is no need to postulate the existence of innate ideas, since every idea we have can be explained in terms of experience. Locke's arguments appears to a principle known as Occam's razor. لاک کی دلیل کو اوکہمس ریزرز کا نام دیا جاتا ہے.
which states that if there are two completing explanation, all other things being equal, one should prefer the one which is simpler. यानी कि अगर दो वजाहतों में से एक को चुनना हो तो सादा को इंसान का जहन जो है चुनना पसंद करे. इस लिहाज से इट इज just a far simpler explanation to suppose we get all our ideas from experience. By mechanism we can understand and explain, rather than that we get some innately. Mechanism we can neither know nor explain. उसका ख्याल है कि चूंकि इंसान का दिल सादा बात को समझ लेता है तो मुश्किल बात में इंसान नहीं पड़ता. इस बात का सवाल कि वो कौन सा मैकेनिज्म है जिससे इंसान के जहन में तसव्वुरात आते हैं. जब ये इंसान इस मुश्किल सवाल का जवाब नहीं दे सका तो उसने एक आसान सवाल की तरफ जो है वो रजू किया कि या तो आप एक्सपीरियंस को मान लें या पैदाइशी तौर पर जहन में मौजूद ख्यालात को मान लें. तो जो अकल परस्त या रैशनलिस्ट थे उन्होंने पैदाइशी तौर पर जहन में मौजूद ख्यालात की बात की, और एम्पिरिसिस्ट ने जैसे लॉक ने कहा कि इंसान का जहन जो है वो उस पर सिर्फ वही आएगा जो तजर्बे में आता है. इस लिहाज से आप लॉक को फर्स्ट ग्रेड साइंटिफिक फिलोसफर भी मान सकते हैं, अगरचे ये तस्वुरात जो है वो लॉक से पहले फ्रांसिस बेकन की राइटिंग में और बेकन से पहले कहा जाता है गलीलियो की राइटिंग में जो है मौजूद थे. Locke's thesis was first level in the empiricist attack on rationalism by showing how much we depend on experience for our knowledge. It challenged the rationalist view that experience could be set aside when reasoning philosophically. इस बात को हम काफ़ी एक्सप्लेन कर चुके हैं कि लॉक ने इस बात पे जोर दिया कि इल्म के हसूल में हम तजर्बे पर इन्हिसार कर सकते हैं, और जो रैशनलिस्ट या तजर्बे को एक तरफ रख के मंतक की बात करते हैं वो दुरुस्त नहीं है. और यही तसव्वुर जो है एम्पिरिसिज्म की जान है. लेकिन जब एम्पिरिसिज्म को डेविड ह्यूम ने, जो कि लॉक के बाद आया था, डेविड ह्यूम ने बयान किया तो डेविड ह्यूम और जॉन लॉक में इस बात पर इख्तिलाफ हो गया कि लॉक का ये ख्याल था कि इंसान जब पैदा होता है तो उसके जहन में कुछ नहीं होता, वो साफ स्लेट होता है. लेकिन डेविड ह्यूम का ये ख्याल था कि हमारे जब हम पैदा होते हैं तो हमारे जहन में आइडियाज तो नहीं होते लेकिन इंस्टिंक्ट होते हैं, और ये जो इंस्टिंक्ट हैं यानी इंसानी जुबिलत फितरत, ये हमारी इल्म को तश्कील करती है. तो आइडियाज जो इल्म का इजहार है वो तो नहीं है, लेकिन इल्म की तश्कील करने वाले एजेंट यानी इंस्टिंक्ट जो है वो इंसान में पैदाइशी है. तो ये एक अजाफा जो है वो लेके आया, और इस तरह से इसने डेविड ह्यूम ने जॉन लॉक के इस तस्वर में कुछ तब्दीली की. तो इस लिहाज से ये कहना कि इंसान जो है सिर्फ जो तजर्बे से सीखेगा, जैसे कि लॉक का ख्याल था, वही सब कुछ होगा, ये डेविड ह्यूम का ख्याल है कि इंसानी जहन में भी पहले से कुछ बातें, कुछ चीज़ें जो हैं वो होती, अगरचे वो इतनी क्लियर नहीं होती जैसे कि कोई कॉन्सेप्ट हो या कोई आइडिया हो, बल्कि वो इंस्टिंक्ट की शक्ल में होती. लेकिन दोनों जो है लॉक और ह्यूम, वो रीजन को प्राइमरी नहीं कहते, प्रायोरी नहीं कहते, बल्कि इसकी बजाय वो एक्सपीरियंस को ही रीजन पर तरजीह देते. डेविड ह्यूम ने रैशनलिस्ट से भी एक इत्तफाक किया इस नुक्ते पर कि रीजन जो है, डिडक्टिव रीजन जो है, वो ज्यादा जो है वो बेहतर है.
सॉरी, डिडक्टिव रीजन जो है ये एक महदूद जो है वो इंस्ट्रूमेंट है, और ये सिर्फ थोरेटिकल सब्जेक्ट्स जैसे मैथमेटिक्स, लॉजिक वगैरह है, वहाँ पर अच्छे तरीके से काम कर सकता है। लेकिन हमारी दुनिया का इल्म जो है वो हमारे हवास पर, सेंस पर होना चाहिए। इसलिए सेंसरी नॉलेज के हवाले से, अगरचे लॉक ने इसकी बात की थी, लेकिन जितना ज़्यादा सेंसरी नॉलेज को डेविड ह्यूम ने एम्फसाइज किया, ये पहले किसी फिलोसफर ने नहीं किया। हम कह सकते हैं कि एम्पिरिसिज्म का तसव्वुर जो है ये एक, क्या कह सकते हैं कि एक रेडिकल कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट ने बुनियादी तौर पर रैशनलिस्ट के डोमिनेंट कॉन्सेप्ट को चैलेंज किया। और रैशनलिस्ट जो कॉन्सेप्ट है उसका ओरिजिन आप ग्रीक फिलोसफर में देख सकते हैं। If experience is our main guide and experience is not about forming deductive arguments on the basis of the evidence of our senses, then humans are much less rational creature than the rationalists could ever have imagined. आपने कई दफा ये बात सुनी होगी कि इंसान बाकी मखलूक से अफसर, और इसके अफजल होने की जो दलील दी जाती है, क्योंकि इंसान अकल रखता है, शऊर रखता है, और बाकी मखलूक में ये नहीं। तो इसका मतलब ये है कि वो रीजन की बुनियाद पर इंसान को बाकी मखलूक पर अफसर करार देते हैं। तो जब ऐसा है तो उस हिसाब से जो रैशनल इस नुक्ता नज़र था वही ज़्यादा डोमिनेट रहा। लेकिन डेविड ह्यूम और जॉन लॉक और बर्कले ने इस कॉन्सेप्ट को, कह सकते हैं कि, कमज़ोर कर दिया और एक्सपीरियंस की बात की। अब अगर एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि एक्सपीरियंस तो जानवरों की ज़िंदगी में भी बुनियादी हैसियत रखता है। तो फिर ये कॉन्सेप्ट इंसान की अकली बर्तरी है, ये बाकी नहीं है। लेकिन एम्पिरिसिज्म की बड़ी खामी ये है, there do seem to be many truths and principles of thought absolutely essential to good reasoning which are not justified or grounded in experience. यानी किसी असूल को तय करने में अकल जो है जितने अच्छे तरीके से रहनुमाई करती है, इंसान का तजर्बा उतना ज़्यादा लॉजिकल नहीं है, लिहाजा उसकी जस्टिफिकेशन भी उतनी ही कमज़ोर है। लॉजिक के असूल जो हैं वो रियल वर्ल्ड के एविडेंस की बुनियाद पर सही और गलत का फैसला नहीं करते, जबकि एम्पिरिसिज्म में चूंकि एविडेंस को, एक्सपीरियंस को हसीयत है, तो एविडेंस की बुनियाद पर ऐसा हो सकता है कि एविडेंस जो है वो टेम्पोरल हो, यानी कि किसी खास जमानो मकान में हो, और वो इनकोरेक्ट आर्गूमेंट जो है वो दे दे। इसकी एग्जाम्पल जो है वो इसी तरह हो सकती है कि एक खजान का पत्ता जो है किसी ने पकड़ा है, जिसने पहले कभी जो है वो पत्ता नहीं देखा, तो उसने खजान के पत्ते की जो शक्ल बनी हुई है उसको ही पत्ते की असल शक्ल जो है वो करार दे। तो ये एविडेंस उसके पास मौजूद था, जबकि पत्ते की शक्ल जो, मतलब जब दरख्त के साथ मौजूद था उस वक्त कुछ और थी। तो इस तरह की बातें आप इसमें देख सकते हैं। आज हम इसको यहीं पर कंक्लूड करते हैं, कल इसको यहीं से दोबारा शुरू करें।